Yesterday we were discussing the base hydrolysis, the various type of the mechanisms they were in discussion. The symbols were B, AC, AAL, AAC, 1 or 2. These words were utilized, or these digits were utilized, where the words are having their own meaning. A for acid, B for base, AC for acyl oxygen cleavage, Al for alkyl oxygen cleavage, 1 mentioned for the unimolecular reaction and 2 was mentioned for the bimolecular reaction. Various mechanisms were traced out on the thinking that this might be the way by which the reaction is proceeding, and later on those traced mechanisms they were supported with the help of some evidences. What were the traced mechanism? One of them is here. It is BAC type mechanism, where it is base hydrolysis and acyl oxygen cleavage is there. So where is the acyl oxygen cleavage? I can tell you with the help of the pointer here. So that part is the acyl oxygen cleavage. That is the CH3 or whatever RCO part is there, that is termed as the acyl, and this is with the oxygen, so it is termed as the acyl oxygen cleavage. So what are the steps? At the first site there is attack of the hydroxyl ion at the carbonyl carbon, shift of this pi electron to the oxygen, again that negative charge pushes inside and methoxyl part it is out from here. So the result is here methoxyl part is out and we are having acid as the product. Then this is acid, that is a basic quantity with negative sign. So acid base reaction takes place and this acid protonates the methoxide ions, forming it methanol. So this is the one of the mechanism basic for the base hydrolysis or for the basic hydrolysis. Some tracer techniques were adopted in order to tell about the cleavage of the acyl oxygen part, and the tracer technique is the technique in which we are utilizing one of the reagent with radioactive isotope. So here amyl acetate is being taken. This is C5H11, that part is amyl, and CH3COO, that is the acid part, that is termed as the amyl acetate. So amyl acetate जो यूटिलाइज किया गया, इसकी हाइड्रोलिसिस डिस्कस की हुई है. इसमें बेस जो यूटिलाइज किया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट कंटेन्स OH पार्ट इन विच ऑक्सीजन इज लेवल्ड विद द O18. तो इसको ट्रेस करके बाद में कि ये O18 कहां पर आ रही है, हम जो मैकेनिज्म का जो वो एक किस्म से आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरीके से यहां से क्लीवेज पॉसिबल हुई होगी. तो जब प्रोडक्ट एनालाइज किए तो जितना भी एसिड बना, ऑल दैट एसिड कंटेन्स द O18. इसका मतलब जो बेस के साथ हाइड्रोक्सिल आयन था वो हाइड्रोक्सिल आयन जो किसके साथ अटैच हो गया है, एसिड के साथ अटैच हो गया है, और जो अल्कोहल था उसमें कोई भी एमाइल अल्कोहल में कोई भी ऑक्सीजन जो O18 नहीं थी. तो इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन जो वो नहीं गई है. तो अगर ऑक्सीजन नहीं गई है तो इसका मतलब ये यहां से ब्रेक डाउन इसका नहीं हुआ है. कहां से? यहां से. अगर यहां से ब्रेक डाउन हुआ होता तो C5H11 के साथ ये OH भी लिंक हो सकता था. कौन सा OH? जिसमें O18 है, लेकिन कोई भी OH लिंक नहीं हुआ है. इसका मतलब क्लीवेज जो है वो एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज है. दैट पार्ट इज द एसाइल पार्ट, और ये पार्ट जो है पीछे बच गया ये ऑक्सीजन वाला और अल्कोहल वाला. So there is a acyl oxygen cleavage. So this is one of the evidence. दूसरा एविडेंस जो वो स्टीरियोकेमिकल स्टडी से आया है. स्टीरियोकेमिकल स्टडी में क्या एविडेंस है कि अगर ये बाय चांस यहां से ब्रेक होता है, दैट इज द एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज, तो ये जो आयन है ये कैटाइन होगा यहां पर, और कैटाइन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. सो दैट विल बी ए कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है. प्लेनर कार्बोकेटाइन में हाइड्रोक्सिल आयन जो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और रियर साइड से भी अटैक कर सकता है. अगर ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हो, मीन्स
सारे के सारे अटैच ग्रुप जो इसमें डिफरेंट हो, तो ये या तो डेक्सट्रोटेट्री आइसोमर होगा या लिवोटेट्री होगा, तो इसकी जो है पर्टिकुलर ऑप्टिकल रोटेशन भी होगी। तो ये जो कार्बन यहां पर शो किया हुआ है, दैट कार्बन इज हैविंग ऑल द 3 ग्रुप डिफरेंट, वन एज द मिथाइल, अनदर एज द हाइड्रोजन एंड अनदर वन एज द इथाइल पार्ट, और इसमें यहां पर जो वो ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी मेंटेन रहती है लास्ट में। मेंटेन रहने का मतलब है कि ये कार्बोकेटाइन में चेंज हुआ ही नहीं है। कार्बोकेटाइन में अगर चेंज हो गया होता तो आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जानी थी, रिमूव हो जानी थी। अगर डी आइसोमर लिया तो डी प्लस एल आइसोमर बनना था, अगर एल आइसोमर लिया तो भी एल प्लस डी आइसोमर बनना था, यानी आपके पास रिस्मिक मिक्सचर बनना था। लेकिन प्रोडक्ट में जो कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड, दैट कंपाउंड, दिस लास्ट कंपाउंड, इट इज रिटेनिंग इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो रिटेन कर रहा है, डी का डी आइसोमर, एल का एल आइसोमर। इट मीन्स द बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन फ्रॉम द एल्काइल ऑक्सीजन, इट इज ब्रेकिंग फ्रॉम द एसाइल ऑक्सीजन. So that is a acyl oxygen cleavage. Some more tracer techniques were adopted in order to study the reaction, and in this reaction, which is in front of you here, the ester taken, now it contains the oxygen as O18, but sodium hydroxide doesn't contains the O18. In between, reaction was stopped and the products and the reactants were analyzed. It is found that O18 was contained not only now in the sodium hydroxide, but the ester which is unreacted is not having oxygen as O18. It means कि O18 यहां से एक्सचेंज हो गई है, वो किसके साथ हो गई है, या तो बेस के साथ चली गई है O18, या फिर वो O18 जो है वो सॉल्वेंट के साथ है। But the alcohol product was not having any O18. Now how this can happen? तो यहां पर एक सीरीज दी हुई रिएक्शन की, इसको चेक करते हैं थोड़ा सा। Suppose the hydroxyl ion attacks this carbonyl carbon here, तो ये टेट्रावैलेंस स्टेट आ जाएगी, इसमें O18 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। If it interact with the solvent, then H is transferred to this O18. So this is OH, below it is OH, it is OC2H5. तो एक किस्म से ये दोनों ऊपर और नीचे दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो वो सिमिलर हैं, एक्सेप्ट वन केस, दैट वन ऑफ देम इज द रेडियोएक्टिव. इट मे हैपन दैट द हाइड्रोजन फ्रॉम द लोअर पोर्शन इट इज लॉस्ट. विच पोर्शन? यहां से हाइड्रोजन का लॉस हो जाए तो इसमें O नेगेटिव आ जाएगा. व्हेन दिस O नेगेटिव विल रिटर्न बैक, दिस OH is released from here. So which is O18, now it is released into the solvent. और OH नेगेटिव आइन है, दिस मीन्स नाउ इट इज ए पार्ट ऑफ द बेस. तो इस तरह से जो वो एक्सचेंज पॉसिबल है किसकी? O18 की with the solvent as well as with the base. So this is the another tracer studies for the studying the mechanism of the reaction. Now what is the actual mechanism? So all these studies, they are indicating about the one pathway, that this hydroxyl ion attacks at this carbonyl carbon, then this bond shifts to the upper side, then this negative charge again re-enters here and the alcohol part it is released from here. So this is the ethoxide ion part released and that is the acid. Then this acid it protonates this alcohol, forming alcohol part. So it is ethanol plus anion of the acid. This is highly stable because there is a resonance in the system. So that is the way by which the base hydrolyze the given ester. The same hydrolysis can be discussed with the help of acid, and that is a part of the acidic hydrolysis. So in this acidic hydrolysis, nothing special, but it is some ester. So this is an ester. It is treated with the acid here. So H positive ion are these one. So acid can be HCl acid or it can be, you can say,
सल्फ्यूरिक एसिड बट नॉट द नाइट्रिक एसिड। रीजन बीइंग नाइट्रिक एसिड जो वो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो नाइट्रिक एसिड जो बहुत कम यूटिलाइज होता है। सो द एस्टर इट इज हाइड्रोलाइज विद द हेल्प ऑफ द एसिड बट देर इज ए एडिशन ऑफ द वाटर, बिकॉज जो हाइड्रोलिसिस होना है उसमें एक H और एक OH की एडिशन है। या तो H एसिड के साथ जाएगा तो भी यहां एसिड बनेगा, और OH जो वो R के साथ जाएगा, या OH एसिड के साथ जाएगा और H जो वो अल्कोहल वाले पार्ट के साथ जाएगा। सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। डायरेक्टली आई एम कमिंग हियर विद द ट्रेसर एनालिसिस कि अगर वाटर यूटिलाइज किया जाए और जिसमें ऑक्सीजन O18 हो, then it is found that all of the acid contains the O18 but alcohol doesn't contains any O18. What is the meaning of this? Again the meaning of this is that bond is breaking from this side. It is acyl part. Which part? This part is acyl. So it is acyl oxygen cleavage. So this is a mechanism that is AAC, acidic hydrolysis and acyl oxygen cleavage. Let us further have the tracer studies in this section. Instead of taking the water as O18 now, we are taking now ester that is having the labeled oxygen or that is having the oxygen, radioactive oxygen. So how the mechanism will proceed? जो प्रोटॉन होता है, एसिड होता है, उसका सबसे पहला काम होता है प्रोटोनेशन करना। चाहे कोई सा भी मैकेनिज्म हो, द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रोटोनेट। तो सो दिस H पॉजिटिव आइन इट अटैक्स दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हियर एंड इट प्रोटोनेट्स दिस ऑक्सीजन। एज इट विल प्रोटोनेट इट, सो इट विल यूटिलाइज इट्स वन ऑफ द लोन पेयर फॉर बॉन्ड मेकिंग, सो इट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इस बॉन्ड को जो अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। तो यहां पर वाटर जो है वो असिस्ट करेगा इस बॉन्ड को विड्रॉ करने के लिए, बिकॉज वाटर इज असिस्टिंग फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन विद द कार्बन हियर। सो नाउ दिस ऑक्सीजन ऑफ द वाटर दैट फॉर्म्स द बॉन्ड विद द कार्बन। सो ऑक्सीजन की 3 बॉन्ड्स बन गए यहां पर। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। सो दिस वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम हियर इट विल बी डिटैच्ड। तो अगर यहां से हाइड्रोजन डिटैच होती है तो कहां जा सकती है? या तो वो ये मान लो यहां से एक हाइड्रोजन डिटैच हो गई तो उसका पाथवे एक ही है, वो इसको प्रोटोनेट कर दे, या वो नीचे वाली इस अल्कोहल पार्ट को प्रोटोनेट कर दे। अगर वो अल्कोहल पार्ट को प्रोटोनेट करता है देन दिस इज द प्रोडक्ट। द पाथवे इज दिस वन। हियर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इट इज OH this way, here again OH, but this part is the ROH positive now, because now bonding of the oxygen becomes 3. So from here the alcohol part is lost and there is a assistance from the oxygen for the release of this alcohol part. So this pair of the lone pair over the oxygen, it re-enters here forming a double bond. So alcohol part it is released here. That is the alcohol part which is released here, and the oxygen which has donated the electron pair to form the lone pair, now it will get the positive charge. तो यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी और एसिड जो है वो एंड में प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। एक ये पाथवे हो सकता था। दूसरा पाथवे ये है कि ये हाइड्रोजन अल्कोहल वाले पोर्शन को ट्रांसफर ना हो, इस O18 को ट्रांसफर हो जाए। सो देयर विल बी द प्रोडक्ट where one of the this ion it will contain OH2 positive. Now this is oxygen positive charge, तो इसमें क्या हो सकता है, यहां से वाटर के तौर पर ये रिलीज हो सकता है। अगर ये वाटर के तौर पर रिलीज होता है यहां से तो आपके पास एक प्रोडक्ट जो वो एस्टर बनेगा, दूसरा वाटर और तीसरा H पॉजिटिव आयन। सो हियर द product this one it is not having any O18, so there is a exchange of O18. तो चाहे एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमने डिस्कस किया चाहे बेसिक हाइड्रोलिसिस डिस्कस किया, मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन ये आ रही है कि जिसमें एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज है। क्या है? एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज। पर जब भी O18 यूटिलाइज की गई तो O18 अल्कोहल में जो वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, या तो वो सॉल्वेंट के साथ है या वो एस्टर के साथ है। लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड हियर।
so the previous portion was here that O18 it is lying with the this ester, and the next portion of ऐसा जरूरी नहीं है कि मैकेनिज्म में हमेशा आपके पास एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज ही हो। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिसमें एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज हो सकती है। कैसी पॉसिबिलिटी? एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज पॉसिबल भी हो सकती है। और कई बार जो वो एसिलियम आयन बनता है, तो एसिलियम आयन जो उसमें आपके पास बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बजाय जो वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन आता है। कौन सा रिएक्शन आता है? यूनिमॉलिक्यूलर। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए हम एसिलियम आयन मैकेनिज्म जो वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दिस मैकेनिज्म? इन दिस मैकेनिज्म H पॉजिटिव आयन फर्स्ट प्रोटोनेट दिस ऑक्सीजन, ऐसा पीछे भी डिस्कस किया हमने। देन डायरेक्टली दिस H इट इज ट्रांसफर टू द अल्कोहल पार्ट। तो ये इसने किसको ट्रांसफर कर दिया? अल्कोहल पार्ट को ट्रांसफर कर दिया। पीछे जो था उसमें टेट्रावेलेंट कार्बन आ रहा था, एक OH और दूसरा OH। इसमें उस तरह का नहीं है, नॉट 2 OH। वाटर जो वो अब असिस्ट नहीं कर रहा है। अभी पीछे जो मैकेनिज्म डिस्कस किया, हियर वाटर इट इज असिस्टिंग टू फॉर्म द बॉन्ड हियर, सो OH अबव एंड OH वाटर हियर इट इज देयर, और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो एक कार्बन के साथ आ रहे हैं। ये मैकेनिज्म नेक्स्ट जो है, इसमें ऑक्सीजन का ही लॉन पेयर जो है दैट इज असिस्टिंग टू फॉर्म द 4 बॉन्ड्स फॉर द कार्बन। तो ये देखो यहां पर ये यहां री एंटर्स हो रहा है और ये यहां से क्या हो रहा है? डिटैच हो जा रहा है। ऐसा तब होता है जब ये आयन जो यहां पर बन रहा है एसिलियम आयन, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। इसकी स्टेबिलिटी तब ज्यादा होती है जब इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो अटैच होते हैं। ये जो पीछे R ग्रुप है, अगर R ग्रुप जो वो इस तरह का ग्रुप है जो ये शो किया हुआ है यहां पर, इसको मिसिटिलीन बोलते हैं। मिसिटिलीन में बेंजीन आ गई और 3 मिथाइल ग्रुप 1, 3, 5 जो है वो मिथाइल बेंजीन, 1, 3, 5 मिथाइल बेंजीन जो है उसको क्या बोलते हैं? हम मेसिटिलीन बोलते हैं। तो ये मेसिटिलीन ग्रुप हो अगर अटैच, तो इसमें असिलियम आयन मैकेनिज्म भी आता है। असिलियम आयन मैकेनिज्म में वाटर असिस्ट नहीं करता है, लेकिन ऑक्सीजन ही असिस्ट कर जाती है अल्कोहल पार्ट को रिलीज होने से। एंड देन असिलियम आयन इट सिंपली एड्स वाटर टू फॉर्म द एसिड्स। सो दिस इज द असिलियम आयन मैकेनिज्म। नाउ लेट अस डिस्कस वन ऑफ द एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज आल्सो। पीछे जितने भी मैकेनिज्म डिस्कस किए उसमें मैंने स्ट्रेस किया कि एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज होगी और वहीं से जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां पर एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज हो। ऐसा तब हो सकता है क्योंकि एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज से आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है तो वो जो कार्बोकेटाइन जो है वो वहां से डिटैच हो सकता है। यहां पर जो ये पार्ट अटैच्ड है, दिस पार्ट, so this breaks from here and this ion separates from here, so that is the alkyl oxygen cleavage। ये कौन सा ग्रुप है? ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। क्या ये? टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये पहला स्टेप इसमें आएगा, दैट इज ऑफ द प्रोटोनेशन। सो दिस H पॉजिटिव आयन इट इज प्रोटोनेटिंग द दिस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? ये प्रोटोनेट कर रहा है। So H positive ion it protonates this oxygen, it forms the OH positive। डायरेक्टली ये हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी किसको? सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ क्या कर लेगी? विड्रॉ कर लेगी। सो दैट इज द विड्रॉल ऑफ द बॉन्ड फ्रॉम दिस साइड। तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो हियर इट इज कार्बन गेटिंग द पॉजिटिव चार्ज। देन दिस बॉन्ड इट इज ट्रांसफर टू दिस सेंटर, सो इट इज फॉर्मिंग COOH। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होना है यहां पर, इट इज ओवर। और ये जो आयन यहां से रिलीज हो गया, दैट आयन इज ए कार्बोकेटाइन। तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है तभी ये रिलीज हो रहा है यहां से। देन दिस इंटरेक्ट्स विद द वाटर फॉर्मिंग द अल्कोहल।
So that are the different ways by which we have studied the acidic and the basic hydrolysis. बेसिक फंडा इसका ये है कि जब भी एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस है तो एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज ही पॉसिबल है। एसाइल ऑक्सीजन जो CH3CO पार्ट है वो डिटैच कर रहा अपने आप को इथॉक्सी या मिथॉक्सी या जो भी अल्कोहल वाला पार्ट है उससे। जो भी आप बेस यूटिलाइज कर रहे हो या सॉल्वेंट यूटिलाइज कर रहे हो उसका OH जो ग्रुप जो है वो एसिड के पार्ट के साथ अटैच हो जाता है और उसका हाइड्रोजन जो है दैट अटैचेस विद द अल्कोहल पार्ट। कहीं कहीं पर एसिलियम आयन मैकेनिज्म भी पॉसिबल है। एसिलियम आयन मैकेनिज्म तब पॉसिबल है जब जो एसिलियम आयन बन रहा हो वो स्टेबल हो। स्टेबल तब होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हो और मेसिटिलीन जो वो बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आता है इस केस में, तो उस केस में जो है एसिलियम आयन मैकेनिज्म पॉसिबल है। एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज भी पॉसिबल है। कब? जब वहां से डिटैच्ड ग्रुप जो है वो कार्बोकेटाइन में चेंज हो रहा है जो वो स्टेबल कार्बोकेटाइन हो, जैसा प्रेजेंट केस है इसमें टर्सीब्यूटाइल केटाइन बन रहा है कार्बोकेटाइन, तो टर्सीब्यूटाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है इसलिए एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज भी जो है वो पॉसिबल है। सो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म रिलेटेड विद द hydrolysis of the ester, whether it is the acidic hydrolysis or basic hydrolysis. Remaining portion that will be discussed in the next lecture.